today we have to start with the subject matter today. We have to start with the subject matter, and the subject matter being taken up today. आप उसको जरा सा हेडिंग बना ली. Let us see the plan of the subject matter. The heading, the title of this subject matter is the title of this subject matter is legal GK. This is the title. This is the title. The heading title should be given. है ना, इसको आप टाइटल दे दीजिए. दिस इज नोन एज लीगल जीके. यू सी, नाउ दिस लीगल जीके is a part of this is a part of almost all the judicial services examination. This is a part of almost all the judicial services examinations, especially the Delhi Judicial Service. You see, ये तो already part and parcel of GK है. Now I have subdivided this legal, GK, this portion into five important units. You see, आप घर पर भी इसी तरह से इसको please go through like this. There are 5 important units of this title, the subject matter legal GK. तो आप you please draw a line. Yes, please draw a line. एक line आप draw कीजिए. This is the line which you have to draw. The first, this is known as unit number 1. This is known as unit number 1. और I hope आपको कोई मैटर भी मिला है इसमें. Yes, unit number आप जरा सा वेरीफाई कीजिएगा, है ना. This first is unit number 1. This is unit number 1. Now this unit number 1 is very important. You see, this unit number 1 is subtitled as, this is subtitled as some important facts. इसका टाइटल हो गया some important facts. Some important facts. ये पहला टाइटल हो गया. important facts about सुप्रीम कोर्ट. अब जरा सा आप काइंडली ध्यान दीजिएगा. some important facts about सुप्रीम कोर्ट. यानी ये जो static, this is a part of static GK. स्टैटिक जीके, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान, बिकॉज देर आर सर्टन मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड. यू सी, दिस इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट. some important facts about Supreme Court. Now under this head, this is subdivided into 5 parts. A, B, C, D, E. इसको 5 भाग में आप बांट दें और यहाँ भर दें. देखिए, यहाँ पर पहले कंसंट्रेट कीजिए. you have to concentrate first on this part of the planning. First is जो A में है, यहाँ पर आप लिखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड फैक्ट्स. अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप कुछ पढ़े होंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप लिखिएगा, CJI रिलेटेड, और इसी तरह से पढ़िए CJI एंड रिलेटेड
फैक्ट्स, ये एक पोर्शन हो गया CJI एंड रिलेटेड फैक्ट्स। तो पहला हो गया CJI एंड रिलेटेड फैक्ट्स, बी हो गया है ना, बी हो गया है ना सम फैक्ट्स अबाउट, ये बी हो गया। तो ये हो गया सम फैक्ट्स अबाउट है ना हाई कोर्ट। कुछ तो आप जानते होंगे और शायद कुछ नहीं भी जानते होंगे। ये सेकेंड, आई मीन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पोर्शन यू सी, सम फैक्ट्स अबाउट है ना हाई कोर्ट। थर्ड पार्ट जो हो गया वो हो गया आपको लीगल बुक्स एंड ऑथर्स, legal books and authors. So I'm confining myself to the entire subject matter, the entire subject matter that is legal GK. So this is item number C. Item number C, if you can see, whole planning को सामने रखिए और ऐसे ही पढ़ने का कोशिश कीजिए। The item number C is some legal books oblique autobiographies, some legal but legal, especially legal books and autobiographies and authors का ये D portion पर आइए है ना। D portion is first in India, तो फर्स्ट इन इंडिया में आप डॉट करके गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब कैसे कवर कीजिएगा, लेट अस सी हाउ यू हैव टू कवर इट अप, यू सी, लेट अस सी। और लास्ट है ना सम इम्पॉर्टेंट लीगल, ये भी लीगल पर ही है, सम इम्पॉर्टेंट लीगल commission and committees, some important legal commissions. तो एक पार्ट यानी दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1 यू सी। अब आपको इस पर खोज, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इनटू है ना सम इम्पोर्टेंट commission and committees, legal वो भी legal, some important legal commission and committees you see है ना। yes, D part is first in India ... government and politics, first in India ... government and politics, एक तो ये पार्ट हो गया। so this is known as unit number 1, जो आप घर पर पढ़ेंगे। पहले यहाँ कन्फाइन कीजिए अपने आप को है ना, पहले यहाँ कन्फाइन कीजिए। यू शुड नो द इंटायर रेंज ऑफ योर स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले जानोगे नहीं कि कहाँ तक कैसे पढ़ना है, तभी इन्वेस्टिगेट पढ़ पाओ। तो दिस इज सर्टेन फैक्ट्स ऑफ अंडर द हेडिंग्स, दिस इज सर्टेन फैक्ट्स अंडर द हेडिंग यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 is followed by the next one, 2-3 पहले रख लेते हैं। दिस इज यूनिट नंबर 2। इसलिए आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब आप अध्ययन इस दृष्टिकोण से करें इस 2-4 दिन में है ना। आप इस दृष्टिकोण से प्लीज यू इन्वेस्टिगेट इनटू इन द बैकड्रॉप ऑफ दीज 5 यूनिट्स यू सी। तो 5 यूनिट्स में सेकेंड जो यूनिट है वो है लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट। ये हो गया सेकेंड यूनिट, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट। तो लीगल न्यूज़ और डेवलपमेंट में आप अगर देखेंगे, इफ यू विल गो थ्रू, बहुत सारा लीगल न्यूज़ अभी आया है, लीगल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद देन यू हैव टू कम टू यूनिट 3
दिस इज यूनिट 3। यूनिट 3 है आपको इम्पोर्टेंट लीगल केस लॉज। तो केस लॉज को 2 भाग में रखिएगा। दिस इज यूनिट नंबर 3 है ना, इम्पोर्टेंट केस लॉज। यू सी इम्पोर्टेंट केस लॉ है ना, जैसे और वो भी कह रहे हैं हम, यू सी आई एम कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू आई मीन इम्पोर्टेंट लीगल केस लॉज। यू सी आई एम कन्फाइनिंग आई मीन इम्पोर्टेंट लीगल केस लॉज। यू सी लीगल केस लॉ जैसे उदाहरण के तौर पर, यानी फॉर एग्जाम्पल यू सी, जैसे हो सकता है आपसे पूछे है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ना, ये एक डिसीजन 2023 का ही केस है। उसी तरह से डिमोनेटाइजेशन पर कौन सा केस, तो जो भी लीगल केस लॉ है आप पहले कॉन्फाइन कीजिए लीगल केस लॉज में। जो भी लीगल केस लॉज है तो केस लॉज में आप इसको 2 भाग में पार्ट कीजिए। ये हो गया, पहला हो गया सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हो गया दिल्ली हाई कोर्ट। इस दोनों को टच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों, बिकॉज यू विल बी फेसिंग आई मीन दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसलिए थोड़ा सा टच कीजिएगा दिल्ली हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट, तो ये दोनों जो कवर करेगा, ये दोनों जो कवर करेगा कम से कम 20, 21 है ना, 22 नहीं हो तो 21, 22 और 23 को जरूर कवर कीजिए। ये दिस इज यूनिट नंबर, this is unit number I mean 3, the second last unit. Now this is the second last unit, this is unit number 4, this is unit number 4 है ना। अब कैसे पुटअप कीजिएगा इसको, हम पहला जो शुरू करेंगे है ना उसको आप देखिएगा। Unit number 4 is international legal organizations। ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन आप पूछिएगा, श्रीमान नमूना भी बताते जाइए। इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे इंटरनेशनल लीगल क्षेत्र में, यस कैन समबडी टाइप इन यूनिट 1 पॉइंट्स। यू सी अंबिका शर्मा, यूनिट 1 में हमने जो सब टाइटल दिया है प्लीज है ना, यस वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, जिसको A, B, C, D और E में बांट दिया मैंने है ना। A, B, C, D और E में हमने बांट दिया है। यू सी यानी आप देखिए ये है ना, विपुल गुज्जर ने लिख दिया है। अब आप देखिए ये यूनिट नंबर 4 है ना, यूनिट नंबर 4 में आई हैव कवर्ड, और वी शुड कवर, रादर यू शुड पुट इट लाइक दैट ना, आई हैव कवर्ड एंड वी शुड कवर है ना द इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हम जितना कवर 2 दिन में हो पाएगा उतना कवर करेंगे, अदरवाइज आप इस प्लानिंग से मूव कीजिएगा। मेरे को 4 दिन मिलेगा तो इट इज़ बेटर, नहीं मिलेगा तो हम 2 दिन में जितना कवर कर पाएंगे वो आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आई मीन यूनिट नंबर 4 है, इसका नेचर देखिए। यूनिट नंबर 4 कह रहा है ना, इंटरनेशनल आई मीन इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस, वहाँ पर लिख दीजिए। यानी आप घर पर जो पढ़ेंगे वो नेचुरली इसको टच करेंगे। क्यों टच करेंगे? क्योंकि मान लिया आपसे पूछ दिया है ना कि किस ऑर्गेनाइजेशन को चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है,
मान लिया आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूएनओ कितना, अभी वर्तमान टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, यू सी। आपसे पूछ गया व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, हो सकता है आपसे पूछे व्हाट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड, तो ये भी दिस इज ऑल्सो हमने इसको भी रखा है, यू सी। जैसे विच वन इज दी इज कंसिडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ वॉर, यू सी, है ना, इन बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, लीग ऑफ नेशंस वेयर वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो लीग ऑफ नेशंस को चाइल्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। 4 ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यू सी। तो क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट है, अभी हाल में हम इसको इंटरनेशनल लॉ जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमने कवर किया है, हमने इसको कवर किया सब्जेक्ट के रूप में जो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है, यू सी, यू आर एक्सपेक्टेड to answer, you are expected to answer or to learn, you are expected to learn, yes, you are expected to learn, you see, you are expected to learn। तो यूनिट 4 का जो सब टाइटल होगा, यूनिट 4 का जो सब टाइटल होगा वो सब टाइटल होगा लीगल स्टेटस ऑफ, यही सब टाइटल यूनिट 4 का होगा। लीगल सब स्टेटस, देखिए आपके मैटर में सब होगा दिया हुआ, लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यू सी। लेकिन कुछ कुछ हमने उसमें परिवर्तन भी लाया। लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यू सी, लीगल स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यू सी। तो ये हो गया यूनिट 4, दिस इज यूनिट 4। तो इसमें लिख दीजिएगा विथ ब्रैकेट में, विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही लिखिएगा, with special reference to United Nations organization and other important organization, you see. और last but not the least, is related to, है ना, वो है करंट लीगल जीके, करंट लीगल जीके कर दीजिए उसको, लास्ट रिसेंट लीगल जीके, रिसेंट करंट लीगल जीके, है ना, लास्ट में इसको यहाँ पर पुटअप कीजिएगा। तो ये एक्चुअली प्लानिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी पार्ट होगा जीके में, इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो तो आप इंग्लिश के टीचर से पूछिएगा। यहाँ पर दिस इज द लास्ट वन इज यूनिट 5, यू सी। सो ये है प्लानिंग, यू सी। अब जो किताब आपको या कॉपी या नोट्स देखना है, आप इसी लाइट में इसको डेवलप कीजिए, है ना। और मेरे को लगता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ओनली 4 or 5 days। जैसे लेट अस स्टार्ट विद दी यूनिट 1, यूनिट 1 से आप शुरू कीजिए। देखिए यूनिट 1 में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए उसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी मैंने किया है। देर आर सर्टेन स्पेशल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो पहला हो गया यूनिट 1 का ए हो गया, है ना, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब आप शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, यू सी, द फर्स्ट पॉइंट इज इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द डेट। यस, व्हाट इज द डेट? 28th of January 1950, है ना, 28th of January 1950। तो 28th of January 1950, है ना, ये आपको, है ना, इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ।
और कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन का केम इनटू फोर्स है ना, व्हेन? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 26th ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ प्रोविजन, जैसा कि कुछ प्रोविजन इमीडिएटली, मतलब आप पॉइंट बनाते जाइए, हम जो बोल रहे हैं अगर आपको याद है तब तो ठीक है। कुछ प्रोविजंस कमेंस्ड इमीडिएटली, दैट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था, इसको याद होगा आपको, है ना। कुछ प्रोविजंस a few provisions came into force at once, you see, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अभी हाल में 26 नवंबर क्रॉस किया है, दैट हैज बीन टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है ये कि इसका दो नाम था, एक तो लॉ डे था और तब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया। तो लॉ डे पहले इसका नाम था लॉ डे, लेकिन 2015 से, यानी आप फैक्ट को जो लिखिएगा वो ये लिखिएगा सिंस 2015 ऑनवर्ड्स, 2015 ऑनवर्ड्स, है ना, दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कह रहा है, काइंडली सी, है ना, 28 जनवरी, द डेट इज, नाउ कम बैक टू द पॉइंट, यू सी, 28th of January 1950, 28th of January 1950, and the Supreme Court was inaugurated, you see. Supreme Court was inaugurated, and the highest court of appeal was, before it came into force, and the highest court of appeal was Privy Council, and Privy Council। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट बिकेम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसके पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वाज प्रिवी काउंसिल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में 3 ऐसा डेट है दैट यू ऑल नो। In the context of constitutional history of India, there are 3 important dates and 3 important events, you see. एक है 1773 का regulating act. Now you will answer me. One is 1773 का regulating act. Second है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और थर्ड है आपको इनॉग्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 28 जनवरी 1950। अब आप देखिए यहां से क्वेश्चन, इस कॉन्टेक्स्ट को प्लीज काइंडली सी the contextual background, you see. First time in the year 1774, a Supreme Court was established in Calcutta. हरियाणा में क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, यू सी, बाय द Regulating Act of 1773, Supreme Court was established. A Chief Justice was also appointed. So, what is the name of the Chief Justice of, established Supreme Court in Calcutta? Yes, my friend. लिखिए, the Chief Justice was established. The Chief Justice was established in
Calcutta Supreme Court, the name of the Chief Justice was Sir Elijah Impey. Impey. Yes, correct. सर एलिजा इम्पे. सुप्रीम कोर्ट से जो कनेक्टेड फैक्ट है उसको ध्यान में रखिए. ये क्वेश्चन हरियाणा जुडिशरी में आया था. सर एलिजा इम्पे later on this next date is the Government of India Act of, main point हम सिर्फ बोल रहे हैं. The next date important is the Government of India Act of 1935. Now by this act है ना, a federal court was established. तो इसका नाम धरा गया है, इसका नाम दिया गया है फेडरल कोर्ट. Federal court was established. I mean the name is, this is known as Federal Court, you see. This was established by the Government of India Act of 1935, you see. Or before independence, India's first चीफ जस्टिस वॉज, और इसके जो चीफ जस्टिस जो उसका नाम क्या था, ना इसका जो फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ उसका चीफ जस्टिस कौन था? ना इसका जो चीफ जस्टिस था वो था मॉरिस गुआयर है ना. I'm talking about, the federal court, you see, was Maurice Guire. आपको फैक्ट्स ना कलेक्ट करना है. नहीं कोई बात नहीं, वो हम आपको कहाँ कर रहे हैं और कौन होते हैं बोलने वाले, you see. तो इनका जो पीरियड है वो है अक्टूबर 1, 1937 से लेकर अप्रैल 25, 1943 तक का पीरियड है. मॉरिस गुआयर की मैं बात कर रहा हूँ. अक्टूबर 1, 1937 टू अप्रैल 25, 1943 है ना. ही वॉज द फर्स्ट, before independence, you see, he was the first Chief Justice of India of the Federal Court. तो आप प्लीज काइंडली होल्ड योर पेन. तो क्वेश्चन एक ये उठ जाता है कि श्रीमान जो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद 1935 एक्ट के बाद है ना जो फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ. तो दोनों में अंतर क्या है? यस दोनों में अंतर क्या है? यू सी, दी सेकंड क्वेश्चन, यस चिराग वशिष्ठ, भूमिका खंडेलवाल, what is the difference between Calcutta Supreme Court and the Federal Court? What is the difference? Yes, एक one liner है. what is the difference? Yes, what is the difference? तो पूरा जो legal Federal Court has a wider jurisdiction. Yes, Federal Court had a wider jurisdiction. देखिए, and she is right to a very extent. देखिए, Supreme Court of Calcutta established in the year 1774 had a limited jurisdiction. उसका लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था. लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब इट वॉज कन्फाइंड टू दी लिमिटेड एरिया ऑफ बंगाल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यू सी, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल जो इस्टेब्लिश
है ना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना वो था विलियम बेंटिक. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू बिकम, आई मीन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यू सी. तो उसका जुरिस्डिक्शन तो वहीं तक सीमित था. आप इसको समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. जबकि द मोमेंट वी यूज द एक्सप्रेशन, द मोमेंट वी यूज द एक्सप्रेशन फेडरल कोर्ट, यू सी, और अभी भी हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट ही है. जैसे अगर आप कंपेयर करोगे, अब देखो जो चीज तुमको है ना लीगल जीके का लगा उसको साइड में नोट कर लोगे, जो लगेगा. और अभी भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप देखिए, तो दिस इज, ऑल्दो द नेम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है. व्हाई इट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट व्हाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? यस माय फ्रेंड, व्हाई इट इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी. इंडिया इसलिए कहा जा रहा है ना, है ना, दो कारण से आप समझिए. इट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ टू ऑब्जेक्टिव रीजन्स, यू सी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, चिराग वशिष्ठ, yes, correct. One reason is Article 141. क्योंकि आर्टिकल 141, अब जो आपको अच्छा लगेगा साइड में मार दीजिएगा. आर्टिकल एक तो हो गया रीजन आर्टिकल 141. तो 141 आई मीन स्टेट्स ऑब्जर्व्स दैट, है ना, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट will be binding on all other courts in the territory of India. तो इसका जो रेंज है पूरे भारतवर्ष का रेंज है, इसलिए दिस वाज टर्म्ड एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू सी, है ना. एंड सो इट वाज टर्म्ड. और सेकंड एक रीजन और भी है, यू सी, एक सेकंड, एक रीजन, देयर इज वन मोर रीजन, यू सी. एक सेकंड जो रीजन है वो ये है that in other words the Supreme Court is also called a federal court also. Federal court, na, it is also called a federal court, na, that is true. It is also called a federal court because it deals with, I mean, the Supreme Court under Article 131, na, 131 में ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को है. अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल एंड, है ना, द ओरिजिनल एंड, है ना, द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ. आप अपना शॉर्ट में संक्षेप में कोई बात को लिखिएगा, है ना, टू डील विथ, है ना, टू डील विथ, है ना, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ फेडरल डिस्प्यूट्स. फेडरल डिस्प्यूट का मतलब हो गया केंद्र और राज्य में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डील करेगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131. इसीलिए 1935 एक्ट, जहां से हम पूरा फेडरल सेटअप लिए हैं, द एक्ट ऑफ 1935, इसीलिए वो जो हमने एक तरह से उसको उतार दिया है, बल्कि यूं कहा जाए कि आई मीन 60 to 70% प्रोविजन जो है ना वो वर्बेटिम उतार दिया गया है एक्ट ऑफ 1935 से. इसलिए आप लिखिएगा कि उसको फेडरल कोर्ट जो कहा जाता है, आई मीन फेडरल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि दैट डेल्ट विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, यू से, और आज भी वो डील कर रहा है. तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, आप यहाँ पर मेंशन कर दें, तो एक तो फैक्ट आपको यहाँ पर, एक फैक्ट तो ये हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट. यू सी, नेक्स्ट फैक्ट है, आई मीन ऑब्वियसली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस
कनेक्शन, वो है आपको द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट यू नो, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो नेचुरली है ना हरीलाल जे कानिया, हरीलाल जे कानिया तो मेंशन कर दीजिए। अब आपने नोट्स में मेंशन कीजिए कॉपी में, लेकिन आप इसको लेकर बढ़िए, है ना, हरीलाल जे कानिया, है ना, हरीलाल जे कानिया। एंड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, एंड द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज यू सी was N. Chandrasekhar Iyer, Endra Chandrasekhar Iyer, who was sworn in, जिसको शपथ दिलाया गया, was sworn in on 23rd of September 1950, 23rd of September 1950 you see। ये this is सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट फैक्ट ये हो गया। आगे बढ़िए, इसके बाद एक फैक्ट ये भी है, वो है दिस इज है ना द सुप्रीम कोर्ट सील, SEAL सील, द सुप्रीम कोर्ट सील। तो यहाँ डैश करके आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना, सील रिप्रोड्यूस फ्रॉम द व्हील ऑफ, रिप्रोड्यूस उसी को उतार दिया गया, रिप्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम द व्हील ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, है ना, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, है ना, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका विथ 24 स्पोक्स, with 24 spokes, 24 spokes। यहां पर प्लीज काइंडली रेफर टू आर्टिकल 374 एंड 376। अगला फैक्ट में आप रेफर कीजिए ना आर्टिकल 374 and 376 you see। as per article 374, na, as per article 374 the judges of the, ना, as per article 374 of the Indian Constitution you see, यहाँ relevant है लीगल जीके के रूप में, है ना, as per article 374 of the Indian Constitution, the judges of the Federal Court of, the judges of the Federal Court of India you see, the judges of the Federal Court of India and became the judges of the Supreme Court, became the judges of the Supreme Court, and under article 376 of the Indian Constitution, एक लाइन में मेंशन कीजिए, अंडर आर्टिकल 376 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जजेस, है ना, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन द ब्रिटिश प्रोविंस, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन द ब्रिटिश प्रोविंस यू सी, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन द ब्रिटिश प्रोविंस, in the British province and the princely states, and the princely states, and the princely states, became the high court judges, the high court judges of the newly integrated states, of the newly integrated states, newly integrated states। तो यानी है ना उस समय जो स्थिति थी वही लोगों ने पहले शपथ लिया यूसी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हुआ। आगे बढ़िए, एक फैक्ट ये भी है, एक फैक्ट इस संदर्भ में, आई मीन देयर इज वन मोर फैक्ट, वो है आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ आई मीन सुप्रीम कोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट यूसी, स्ट्रेंथ ऑफ द सैंक्शन पोस्ट ऑफ, आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ लीगल जीके के अंतर्गत आप मेंशन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ दी, आई मीन यस करेक्ट यू आर भूमिका, लेकिन आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन यू सी, स्ट्रेंथ ऑफ आई मीन दी
है ना, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, दिस इज आई मीन स्ट्रेंथ जब हम कहेंगे तो, है ना, आपको इनिशियल स्ट्रेंथ था कितना, इनिशियल आई मीन फर्स्ट लेवल पर कितना स्ट्रेंथ था, तो लिखिए 7+1। और जो रिसेंट 2019 में इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, है ना, 2019 में नंबर ऑफ जजेस, है ना, इन द सुप्रीम कोर्ट, ये जो पास हुआ उसमें इंक्रीज हुआ, तो अब हो गया है 33+1, +1 मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज स्ट्रेट, ये तो फैक्चुअल हो गया। डिटर्मिनेशन, क्वेश्चन ये है, हु डिटरमाइंस, क्वेश्चन एक्चुअली लीगल जीके में ये है, हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, क्वेश्चन ये है। यस चिराग बाबू, हे चिराग बाबू बताइए, हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ I mean the judges of the Supreme Court and High Court, चिराग बाबू बताइए। This is president, you see. No, this is not correct. This is not correct, you see. This is not exactly yes. आप यहाँ पर लिखिए, so far the strength of, अपने लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखिएगा, so far the strength of the judges of Supreme Court is concerned, and strength of the judges of the Supreme Court is concerned, you see, the ultimate source of the ultimate power lies with the parliament, you see. The ultimate power lies with the parliament to determine the strength of Supreme Court judges. Are you getting my point, you see? Are you getting my point? Poor man like me, you see. But who determines the strength of the High Court? तो यहां पर आप लिखिए कि पार्लियामेंट नहीं है, यहां पर द प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल, प्लीज काइंडली गेट माय पॉइंट, अंडर आर्टिकल 216 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू सी, under article 216 of the Indian Constitution, and the strength of the judges of the High Court is determined by, it is fixed or determined by the president. So there is a difference. There is a difference. आगे बढ़िए, अगला जो पक्ष है, अगला जो पक्ष है वो है एज ऑफ रिटायरमेंट, तो 65 और 62 रिस्पेक्टिवली कर दीजिए। आई मीन 65 एंड 62, तो 65 हो गया सुप्रीम कोर्ट और 62 हो गया हाई कोर्ट, तो आप उतना मत लिखिए, 65 एंड 62 रेस्पेक्टिवली कर दीजिए, 65 एंड 62 रेस्पेक्टिवली, यू सी, रेस्पेक्टिवली, यू सी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट हो गया, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस एंड द रिस्पेक्टिव जजेस, दो चीज हो गया, है ना, तो ये आप जान रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप लिख दीजिए, इट इज अ कन्वेंशन बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियोरिटी, दैट्स ऑल। It is a convention based on rule of seniority. कल क्लास 2 घंटे का रखवाइए, हालांकि सुनता कोई नहीं है सर, हाँ ठीक बोल रही है, हंस रही है, हम समझ गए क्यों हंस रही है,
तो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, कल फ्री भी हैं हम, तो आप मेंशन कर दीजिए, यू शुड मेंशन इन दिस कनेक्शन, है ना, आप यहाँ मेंशन कर दीजिए दैट, है ना, दैट द अपॉइंटमेंट of Chief Justice of India is a convention based on rule of seniority। एकदम समरी में लिखिए, बेस्ड ऑन कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब ट्रेडिशन, है ना, बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियोरिटी। रूल ऑफ सीनियोरिटी आप यहाँ पर बेस कीजिए, रूल ऑफ सीनियोरिटी, बेस्ड ऑन रूल ऑफ सीनियोरिटी एंड है ना, the appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, इसको साथ में लिख दीजिएगा, and the respective appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, and the respective appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, I mean, is based on the collegium system of appointment। collegium system of appointment, है ना, आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट वाज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 3 जजेस केस, है ना, 3 जजेस केस, आप सिर्फ लिखिए 3 जजेस केस, इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ 3 जजेस केस, यू सी 3 जजेस, घर पर इसको वेरीफाई कीजिए, इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ 3 जजेस केस, यू सी 3 judges case, and they are removed under article, है ना, they are removed under article 124 clause 4 and 5, यही लिख दीजिए, that's all, and they are removed under article 124 clause 4 and 5, under article 124 clause 4 and 5, you see। यहाँ पर अगला जो आइए, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कनेक्शन, यू सी द नेक्स्ट आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस कनेक्शन, यू सी हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस का जो लिस्ट है, अब 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछेगा, किसी ने आंसर नहीं किया, 2 चीज यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट है, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट, एक तो हो गया कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू सी। तो पहला फैक्ट तो यहां पर आप ये दीजिए, है ना, दैट नेम द पर्सन, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू सी। ये तो ऑलवेज क्वेश्चन पूछा है, नेम दी, आई मीन जरा सा इसको समझिएगा भी, एक चीज शायद आंसर आप नहीं कर पाइए, है ना, नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, हु अज्यूम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द ओनली केस, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, वो है एम हिदायतुल्लाह, वो है एम हिदायतुल्लाह। तो आप एम हिदायतुल्लाह में, है ना, सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, डेट दे दीजिए, एम हिदायतुल्लाह में डेट को अंडरलाइन कीजिए, यू सी, है ना, 20 जुलाई 1969 टू अगस्त 1969, 24 ऑफ अगस्त 1969, है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि एम हिदायतुल्लाह ने जो, अब इसको स्टॉप योर, होल्ड योर पेन, यानी एम हिदायतुल्लाह ने जो चार्ज को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो एज्यूम किया, तो किस बेसिस पर किया, क्या कोई प्रोविजन है ऐसा? ये बात आई मीन भूमिका खंडेलवाल से और, है ना, अंबिका शर्मा से और हर्षवर्धन से मैं पूछना चाहूंगा, आई एम सॉरी आई हैव आस्क्ड यू, आखिर किस बेसिस पर इनको उस पद पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, पदस्थापन किया गया? 126 नहीं, दैट इज गाइडेड बाय भूमिका, दैट इज गाइडेड बाय
आर्टिकल 70, देखिए 70 में लिखा है ना, टू मीट कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज में पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कि इन केस अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ऑफिस खाली होगा तो चीफ जस्टिस विल टेक द, तो आप लिखिए कोट अनकोट, है ना, आई मीन द बेस आर्टिकल, द बेस प्रोविजन इज, द बेस प्रोविजन इज आर्टिकल, आई मीन 70, द बेस प्रोविजन इज आर्टिकल 70। यू सी, एक तो फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आता है। सेकंड, दूसरा जो फैक्ट है, सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द सेकंड इंपॉर्टेंट, द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु, आई मीन एक्सपायर्ड इन ऑफिस, ऑफिस के दौरान ही उनका देहांत हो गया, तो लिखिए डैश करके सब्यसाची मुखर्जी, सब्यसाची मुखर्जी, है ना, सब्यसाची मुखर्जी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेम द टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेम द टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया who also became the member of parliament in the Rajya Sabha, you see, who also, I mean, assumed the membership of parliament in the Rajya Sabha। तो यहां पर लिखिए नंबर 1 और 2, पहला लिखिएगा, है ना, वो है ना, रंगनाथ मिश्रा, तो लिखिएगा ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु आफ्टर रिटायरमेंट वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 1998 to 2004, दैट इज देयर। एक जगह फैक्ट्स को रख लीजिए, अरे कोई तो कोई 5 ठो लड़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आइए, दी सेकेंड वन इज रंजन गोगोई, लेकिन रंजन गोगोई इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के रूप में, इसलिए लिख लीजिए, है ना, रंजन गोगोई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू सी, है ना, is the first chief justice to be nominated to the Rajya Sabha, the first chief justice to be nominated to the Rajya Sabha, you see, the first Sikh to become chief justice, तो जस्टिस केहर, आप लिखिए जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS केहर, JS केहर, followed by the next important one is expired में एक और ऐड कर दीजिए, कानिया भी ऑल्सो एक्सपायर्ड इज, जे हरिलाल जे कानिया एक्सपायर्ड इन ऑफिस में, उसको ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, जज विथ लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो नेचुरली इनके बाप, इनके पिताजी, तो आप लिखिए YB चंद्रचूड़, YB चंद्रचूड़ को लिखिए 1978 से 1985 तक, और नीचे लिखिएगा 1978 to 11 जुलाई 1985 तक, और तब आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में शॉर्टेस्ट टेन्योर, तो नेचुरली जस्टिस केएन सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्टेस्ट टेन्योर जस्टिस केएन सिंह, आई मीन 25th of November, केएन सिंह, that is 25th of November, that is 25th of November
1991 to 12th of December 1991. 12th of December 1991 you see. तब क्वेश्चन ये उठता है कि एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर की तो नेचुरली पीएन भगवती. एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर है ना इज दैट ऑफ है ना जस्टिस पीएन भगवती. जस्टिस पीएन भगवती. उसके बाद लिखिए जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन. जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन. जजेस हु कंटेस्टेड इलेक्शन. कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यू सी कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आप 3 नाम दीजिए. जस्टिस के सुब्बाराव, जस्टिस एच.आर. खन्ना. एच.आर. खन्ना आपको याद होगा, जैसे एच.आर. खन्ना का जब नाम आता है तो दो दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एच.आर. खन्ना, एक तो एच.आर. खन्ना को सुपरसीड किया गया था. आई मीन ड्यूरिंग मिसेस गांधीज टाइम एच.आर. खन्ना सीनियर मोस्ट को इनको सुपरसीड करके he was actually superseded और जस्टिस एन रे जूनियर को बना दिया गया था. पहली दफा ब्रेक किया गया था आपको रूल ऑफ सीनियरिटी को. 2 बार ऐसा ब्रेक हुआ है ना. तो एच.आर. खन्ना was came into limelight because of his resignation on account of this supersession. You see, his resignation on account of this supersession. You see, on account of this supersession. You see, on account of this supersession. यहाँ पर आप देखिए, इफ यू सी, ये जो सुपरसेशन की मैं बात कर रहा हूं है ना, इफ यू काइंडली सी है ना, तो एक तो इसलिए एच.आर. खन्ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो, आई मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्सनैलिटी. और सेकंड जो इनका इम्पोर्टेंस है वो है, द सेकंड इम्पोर्टेंस इज केशवानंद भारती केस में. इनका केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस जजमेंट से एसोसिएटेड. ही इज एसोसिएटेड विथ द जजमेंट, द फेमस जजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स केस, जिसका नाम है द फंडामेंटल राइट्स केस है ना. फेमस जजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स केस विच इज नोन एज केशवानंद भारती केस 1973. केशवानंद भारती केस 1973. यू सी, तो एच.आर. खन्ना और तीसरा नाम दीजिए जस्टिस वी. कृष्ण अय्यर. ये तीनों कंटेस्ट किए थे है ना, कंटेस्टेड इलेक्शन of the president of India. You see, contested election of the president of India. You see, आगे बढ़िए. एक क्वेश्चन ये भी उठता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक तो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, ऑन अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियन सिस्टम, लेकिन फ्रॉम बार टू बेंच भी हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट आपका हो गया. तो क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, आप ऊपर हेडिंग दीजिए है ना, जजेस अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार. उसका नाम एक जगह आप देखिए उसमें
उसमें नाम होगा. Yes, what are those? Please tell me. Who was the first who was appointed directly from the bar? No, first he was not the first. I mean, there are altogether 6 or 7 persons, you see. There are altogether 6 or 7 persons. जैसे फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट की बात करेंगे जो डायरेक्टली फ्रॉम द बार अपॉइंट हुआ, वो है जस्टिस एस.एम. सिकरी, retired as Chief Justice. S.M. Sikri, as you all know, Sikri, as a matter of fact, you see, and Justice S.M. Sikri, as a matter of fact, is associated with the famous Berubari case, 1960. बेरूबरी केस में ना 2 डिसीजन हुआ था. दो जो डिसीजन हुआ था बेरूबरी केस में, वो 2 डिसीजन ये हुआ था. प्लीज काइंडली सी. एक डिसीजन तो ये हुआ था बेरूबरी केस में. क्या डिसीजन हुआ था? यस, इधर ध्यान दो. यस, क्या डिसीजन हुआ था? बेरूबरी केस का नाम सुने हो? यस, क्या? व्हाट इज दैट? यस, व्हाट इज दैट? यस, तुम्हारा नाम क्या हुआ? हाँ, अदिति. यस, अदिति, यू विल टेल मी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेरूबरी केस. आपके अनुसार इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या था? यस, करेक्ट. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एक तो इसमें बेरूबरी केस का यह डिसीजन हुआ दैट द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज ओवर रूल्ड बाय केशवानंद भारती केस 1973. दैट प्रियम्बल इज अ वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द. एक तो यह इंपॉर्टेंट है बेरूबरी केस से, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दैट द डिसीजन ऑफ द बेरूबरी केस, है ना, बेरूबरी केस एक्चुअली इशू ये था इसमें, आप जरा समझ लीजिए. इशू ये था, सिकरी वॉज एसोसिएटेड विद दिस केस. इशू ये था इसमें कि एक वेस्ट बंगाल का बंजर लैंड एग्रीमेंट किए, हम दे दिए थे, पाकिस्तान को दे दिए थे. तो इसका मतलब आपको जो बुझाएगा वो दे दीजिएगा. तो दैट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इन विच केस दैट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन, है ना, मगन भाई ईश्वर भाई पटेल केस 1970. उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया. मगन भाई ईश्वर भाई पटेल 1970 के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस केस में जस्टिस सिकरी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था प्रियम्बल के बारे में. यस, क्लास में हमने बताया है. तो वो है आपको, इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क. उन्हीं का स्टेटमेंट है. तो पहला जो डायरेक्टली बार टू बेंच हुआ वो था जस्टिस एस.एम. सिकरी. पहला जो हुआ वो है ना, वो है जस्टिस एस.एम. सिकरी, ब्रैकेट में लिखे 64 to 73. दूसरा जो आपको डायरेक्ट हुआ वो, है ना, वो एस.सी. रॉय थे 1971 में. तीसरा जो डायरेक्ट हुए वो है जस्टिस कुलदीप सिंह 88 to 96. It directly as a judge of the Supreme Court appointed हुए. चौथा वो है जस्टिस संतोष हेगड़े. ये क्वेश्चन, 2 चीज जो अभी हम बता रहे हैं दोनों आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है.
जस्टिस संतोष हेगड़े 99 to 2005. नेक्स्ट जस्टिस रोहिंटन नारीमन, नारीमन ये हो गया 2014 से 2021, 2014 से 2021। नेक्स्ट है जस्टिस उदय उमेश ललित, 14 से 22। नेक्स्ट है जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एल नागेश्वर राव 16 से 22। नेक्स्ट है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, तो ये है 2018 से 2018 टू 2021। यहाँ पर विशेष बात जो इंदु मल्होत्रा के साथ एक विशेष बात है, ये क्वेश्चन जुडिशियल सर्विस में आया हुआ था, वो विशेष बात ये है कि इन सबरीमाला केस, व्हाट इज द नेम ऑफ द केस अदिति? In Sabrimala case, what is the name of the case? Yes, the name of the case is Young Lawyers Association. So Indu Malhotra was associated with this Young Lawyers Association case. तो खास बात क्वेश्चन जो आया था, वो ये आया था, the question which came in this connection, you see, वो ये आया था कि हु गेव ए डिसेंट ओपिनियन इन सबरीमाला केस। डिसेंट समझते हो? DISSENT, डिसेंट का मतलब क्या हुआ? यस, कैन यू टेल मी? यस, आज का लड़का बच्चा पढ़ता नहीं है। आई टेल यू, मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ा रहा था अभी, है ना, हमको एक भी सीरियस स्टूडेंट नजर नहीं आया। व्हाट इज दी, है ना, कंटेंट, चेंजिंग कंटेंट एंड कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ के भी कोई नहीं आता है। पढ़ाई एक बोझ बन गई है। आज ना आपको नहीं लग रहा है, यू सी, कल रोइएगा, यू विल वीप। आज सीरियस नहीं होगा तो यू विल वीप टुमारो। जब ये आपका समय निकल जाएगा तब आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू सी, यू शुड बी अहेड ऑफ द क्लास। यू सी, हमने तो यूनिट मान लिया बनाया, सजा के आपको दिया, तो देने का पीछे वजह क्या है? यू सी, द रीजन इज कि कल तक आप इसको फिनिश कर दीजिए। कल नहीं तो 2-3 दिन में फिनिश कर दीजिए आप इसको। मैं 10 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं, अभी फिर जाएंगे, अभी क्लास है 212 में। बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए ना, 2 मिनट रुको ना। तो आप यहां पर लिख दीजिए सबरीमाला केस से, बिकॉज सी प्रोवाइडेड अ डिसेंट ओपिनियन, मतलब विरोध किए थे। तो आप लिखिए इंदु मल्होत्रा प्रोवाइडेड अ डिसेंट ओपिनियन। यू सी, यस, चल रहा। और लास्ट आप जो दीजिए वो डायरेक्टली फ्रॉम बार है, वो है जस्टिस PS नरसिम्हा, जो डायरेक्टली फ्रॉम बार है। यस, करेक्ट, यू आर डायरेक्टली फ्रॉम बार है। कल तो मेरे को थोड़ा फुर्सत है, इसलिए इसको थोड़ा एक्सीड करेंगे, तो आप जरा उसको ध्यान दीजिएगा। PS नरसिम्हा ब्रैकेट में लिखिए 2023 टिल डेट।
यहां से कल प्रोसीड करेंगे और मैं समझता हूं कि करीब करीब 3 यूनिट तो पार कर ही जाएंगे। कल हम प्रोसीड करेंगे, 3 यूनिट को पार कर जाएंगे। आप जरा सा अपने भी काम कीजिए प्लीज, दिस इज माई डायरेक्शन एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो, यू शुड वर्क ऑन योर ओन ऑल्सो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यूनिट के अनुसार बैठिए, है ना। अगर रात में आप पढ़ते हैं तो बैठिए, लेकिन यू प्रेफर टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, यू सी। उस समय बहुत शांति रहती है। लेकिन जैसे भी आप पढ़ते हैं, उठाइए 1 यूनिट साफ कर दीजिए, उठाइए 2 यूनिट निकाल दीजिए, और एग्जैक्टली वही चीज नहीं कीजिए, थोड़ा दाएं बाएं भी कीजिए। थैंक यू।